Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. This video is continuation of Test Your Knowledge series and today we are going to attempt some MCQs from polity section and the procedure will be same as that of before. First I am going to read out question in front of you, then I'll be provide you with 5 seconds and then I will give you the answer. Then we will move on to next question and the procedure continues till all questions are being answered. And at the end, if you are satisfied with the result, you don't have to continue with the analysis. But if you're not satisfied with the result, you can continue analysis with me. So let's start without any. Question number 1. The idea of independence of judiciary. देखो, first of all, independence of judiciary and second one is fundamental rights are taken from which of the country? As you all know, कि जब हमारा constitution बन रहा था, we have taken many subjects from different countries. और independent of judiciary and fundamental rights are taken from which country? ये आपको पता होना चाहिए. The option is USSR, UK, USA, Australia, and you have 5 seconds. And the answer is USA. हमने USA से लिया. चलो. Let's move on to question number 2. The suspension of fundamental rights during an emergency is taken from which of the following country? As you all know कि जब हमारा क्या होता है, emergency period आ जाता है, जब हम emergency national emergency को करते हैं, लागू करते हैं, हम क्या कर देते हैं, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देते हैं. तो वो हमने प्रोविजंस किस कंट्री से ली है? जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, जापान. The correct answer is Germany. Let's move on to question number 3. In which act direct elections started in India for the first time? Parliamentary reform, Montagu-Chelmsford reform, Government of Indian Act of 1935 or Council Act of 1909? If you want more time, you can pause the video. The correct answer is option B. Question number 4. Right to privacy is given in which of the article of our constitution? As you all know, right to privacy is fundamental right. But it is given in which article? Article 19, Article 21, Article 23, Article 15. The correct answer is option B. Question number 5. Most of the articles are qualified in the Constitution of India, but which of the following article is absolute? The meaning is, when I say qualified, I means not absolute. Not absolute means इसकी reasonable restrictions है. ऐसा नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट दे दिया गया और आप 100% उसको अपनी मर्जी के हिसाब से चला पाएंगे. स्टेट बीच इंटरवीन कर सकती है. अब वो कौन सा आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट है, जिसके बीच स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकती? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21. बाय इंटरवीन आई मीन्स कि जिसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अगर आपको इसका आंसर अभी समझ नहीं आया, आप एनालिसिस के रुक सकते हैं, मैं वहां पे आपको बता दूंगा. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following article cannot be suspended even during the emergency? As you all know, fundamental rights get suspended during emergency. But which of the following articles cannot be suspended even during the emergency? Article 14 or 21 and 21, Article 19 and 21, Article 20 and 21, Article 21 and 22. If you want more time, you can pause the video anytime. The correct answer is option C, Article 20 and which amendment to the constitution is known as mini constitution? Most important question. Option A, 42nd Constitution Amendment Act, 44th Constitution Amendment Act, 46th Constitution Amendment Act, or 48th Constitution Amendment Act. Correct answer is option A, 42nd Constitution Amendment Act. Question number 8.
In which constitutional amendment right to education became the fundamental right? As you all know कि fundamental right जो हमारे कौन से होते हैं, हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच जो आते हैं, वो स्टार्टिंग में राइट टू एजुकेशन इन आर्टिकल्स के बीच नहीं आता था, ठीक है, उसको बाद में डाला गया। किस अमेंडमेंट से उसे डाला गया? ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। The correct answer is option D, 86th Constitution Amendment Act. Question number 9. The motion is passed to discuss the matter of urgent public importance by setting aside the normal proceeding of the House. Which of the following motion represents the above statement? जो statement दी गई है, कौन सा motion है जिसके बारे में बात? Confidence motion, adjournment motion, privilege motion और closure motion? And the correct answer is option B, adjournment motion. Question number 10. Which Indian president won election automatically because there was no one standing against him? मतलब क्या कि इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ तो इनको ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बना दिया विदाउट इलेक्शन। ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नीलम संजीवा रेड्डी। तो अगर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ठीक हैं तो आपको एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके क्वेश्चन गलत हैं तो आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस अभी मेरे साथ चेक कर सकते हो। या जो आपके क्वेश्चन गलत हैं, अगर आपको सिर्फ उसकी एनालिसिस देखनी है तब उसी में डायरेक्ट जंप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से कंट्रीज से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए? USA से। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो लिए हमने कहाँ से लिए, बेसिकली USSR से ली हुई। ये आपको एक पूरी शीट बना लेना जिसमें आप कम से कम किन कंट्रीज के बारे में पढ़ लेना। USSR से हमने क्या लिया हुआ है, USA से क्या लिया है, फ्रांस से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, और यूके से तो ऑब्वियस ही बात है, मोस्ट ऑफ द हमारे रिफॉर्म्स जो हैं यूके ने यूके आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। The suspension of fundamental rights during an emergency is taken from which of the following country? देखो ये वेबिनार मॉडल है, में क्या था कि जर्मनी में आपको पता ही होगा कि 1939 में जो 1945 तक वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी। वर्ल्ड वार सेकेंड हुई कहाँ से थी? हिटलर ने क्या किया था, पार्लियामेंट को जला दिया था, उसने लोगों को अपने पैसे देके कर दिया था, जला दिया था किसको, अपने पार्लियामेंट को। और उस टाइम उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी क्या कर दी थी, लगा दी थी। तो उसी टाइम में क्या हुआ, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने बोला कि किसी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कोई खड़ा होकर क्या कर सकता है, बड़े फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहीं पे नहीं जा सकता। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट कहाँ से आया था? जर्मनी से, हिटलर के टाइम पे। तो आपको पता होना चाहिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। ये भी सेम ही आ गया, जब मैंने आपको पीछे क्या कहा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी एक क्या सब्जेक्ट है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच एक्ट डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो अगर आपको कम से कम नाम पता होता, क्या नाम पता होता कि काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को क्या कहते हैं, काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 को क्या कहते हैं, तो कम से कम 2 ऑप्शन आप सीधे बाहर निकाल सकते थे। और वो कौन कौन से ऑप्शन है? एक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म को बाहर निकाल सकते थे, और एक काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को। तो आप पूछोगे कि कैसे बाहर निकाल सकते थे? क्योंकि जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था उसे ही हम क्या कहते थे, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। तो 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अगर ये हम इसको ठीक करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर इसको गलत करें तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। एक आंसर में 2 ऑप्शन ठीक हो नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली आपके 2 बाहर हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या फिर मॉन्टेग्यू हेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा
1919 में जो मोंटेगू के हेम्सवर्थ रिफॉर्म आए थे, उसमें फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। उससे पहले डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते थे। तो आपको ऐसे प्रोविजंस याद रखनी पड़ेंगी। तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में आए हुए, उसमें भी कौन कौन से नई प्रोविजंस आएंगे। फर्स्ट टाइम इंडियन एक पर्सन है जिनका नाम है सत्येंद्र पी सिन्हा, उनको कहाँ डाला गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इस टाइप की चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू प्राइवेसी इज गिवन इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो राइट टू प्राइवेसी काफी हॉट टॉपिक है ये। आई थिंक 2018 19 में क्या हुआ, 18 में सॉरी हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स में इसको डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोलता कि हाँ बिल्कुल राइट टू प्राइवेसी आपकी क्या फंडामेंटल राइट है। तो अभी तक ये पेपर में काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो कम से कम आपको राइट टू प्राइवेसी का पता होना चाहिए। जो राइट टू प्राइवेसी है ये आपके लिए क्या है, ये एक लिबर्टी है आपके लिए। ठीक है, तो लिबर्टी के बारे में कहाँ कहाँ बोला गया, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21। आपको कम से कम एटलीस्ट 51A आर्टिकल तक आपको आने चाहिए, 1 से लेके। ये आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, क्यों, क्योंकि इसके बीच इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा पूछते नहीं है। अगर आपको याद रखने तो 1 से 51A तक याद रख लो, और एट द सेम टाइम 352 आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी 356, स्टेट इमरजेंसी 360, फाइनेंस इमरजेंसी। इससे ज़्यादा आपको आर्टिकल्स अगर नहीं याद हो रहे हैं, डज नॉट मैटर, कम से कम लेकिन इतने आपको होने चाहिए। इसके ज़्यादा आप जितना करना चाहो आपकी मर्जी। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर क्वालिफाइड इन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज एब्सोल्यूट। देखो कोई भी अगर हमें क्या दिया जाता है, आर्टिकल दिया गया, हमें फंडामेंटल राइट्स दी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको हमेशा क्या कर रहे हैं, वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। यस ऑफ कोर्स आपको मिलने चाहिए, वो जस्टिसेबल में, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है उन बेसिस में। कैसे, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 की पहले सबसे हम बात लेके चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू इक्वालिटी। बट एट द सेम टाइम हमें क्या मिलता है, आर्टिकल 15। एक मिनट हम कर, देखो आर्टिकल 14 और 15 में क्या लिखा गया है। यहाँ पे बोला राइट टू इक्वालिटी मिलेगी, एट द सेम यहाँ पे बोला है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ और CSP, मतलब क्या, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि हर कोई इक्वल है और यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बट देन अगेन रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम में क्या कर रहे हैं, सरकार खुद डिस्क्रिमिनेट कर रही है। क्यों, क्योंकि अपलिफ्टमेंट के लिए उनको इक्वालिटी लानी है। इक्वालिटी कैसे आएगी, थ्रू इक्विटी, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जाके इक्वालिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बात तो की जा रही है राइट टू इक्वालिटी की, बात तो की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट सरकार पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करती है, और उसको हम रिजर्वेशन सिस्टम कह सकते हैं। वुमेन्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, चिल्ड्रंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे सभी ला के क्वालिफाइड है। स्टेट क्या कर सकता है, बीच आपको इंटरफेयर कर सकता है। हम मान लेते हैं आर्टिकल 25 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 25 में आपको रिलीजन की क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री आप हमेशा सुनते हो, तो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिला है। बट आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। कैसे होगी कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसे कर रहे हो जो मोरालिटी के खिलाफ है, लाइक आप ह्यूमन सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो सरकार आपको सेक्रीफाइस नहीं करने देगी। आप ये बोल के सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ह्यूमन सेक्रीफाइस कि भाई ये मेरे रिलीजन में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट सिर्फ एक ही आर्टिकल है जिसकी, जो एक एब्सोल्यूट है, जिसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो एब्सोल्यूट है, वो मानना ही मानना पड़ेगा सरकार को भी और लोगों को भी। और वो कौन सा, आर्टिकल 17। ये कौन सा है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना। किसी भी कंडीशन में हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये कंडीशन है तो हम टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। हम नहीं मानते, हम इसको हमेशा के लिए अबॉलिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ला क्या है, एब्सोल्यूट है, ये मानना ही मानना पड़ेगा, ये कभी गलत नहीं हो सकता। बाकी सब क्वालिफाइड है, ये भी क्वालिफाइड है। 19 में कहा गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी, आपको प्रेस को क्या मिल जाता है, प्रेस क्या कर सकती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा जब जम्मू में आर्टिकल 370 हटा था, तो प्रेस के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी। इसका मतलब क्या है, चाहे वो फंडामेंटल राइट है बट उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये सिर्फ एक इकलौता आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट है।
अब हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी चल रही है, कौन से दो आर्टिकल जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आपको पता होना चाहिए, मैंने तभी कहा आपको कम से कम आपको एटलीस्ट 50 आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए फर्स्ट, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा जाए। तो आपको वो नहीं पता, आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन पूछा क्या उन्होंने। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब ऑब्वियसली बात है, राइट टू लाइफ की बात की गई है, किसी इंसान से उसकी लाइफ नहीं छीन सकते, डज नॉट मैटर इमरजेंसी चल रही है नहीं चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 20 क्या हो गया, डबल जेपर्डी से आपको बचाता है, अगर आपको एक बार सजा हो गई है किसी चीज के लिए, आपको वापस उसकी सजा नहीं मिल सकती है। ठीक है, आप कम से कम इन आर्टिकल्स के बारे में क्या कर लें, एक बार उनको पढ़ लें, और ये उनके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आर्टिकल 20 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट आर्टिकल है। ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ फॉरनर के ऊपर क्या होते हैं, लागू होते हैं, और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कौन कौन से ऐसे जो सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन के ऊपर लागू होते हैं, और कौन कौन से हैं जो फॉरनर प्लस इंडियन सिटीजन पे लागू होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमने कुछ चीज सुनी है तो किसके बारे में सुना है, इंदिरा गांधी ने क्या किया था 1976 को, इतनी ज्यादा उन्होंने अमेंडमेंट्स की थी, इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स की थी, इतनी ज्यादा प्रोविजंस में अमेंडमेंट आ गई थी कि एक तरीके से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माने जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा चेंजेस आई थी। अगर 1 2 3 10 15 चेंजेस आ रहे हैं बोल रहे हैं ओके, बट इसमें इतनी ज्यादा चेंजेस आई थी कि एक तरीके से अगर हम सिर्फ चेंजेस को ही साइड में रखते हैं ना, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम इसको क्या बोलते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, ये क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा रीजन है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन बिकेम द फंडामेंटल राइट। देखो 86 कॉन्स्टिट्यूशन की 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2002 के आसपास है। एक बार आप चेक कर लेना, बट हाँ आई थिंक 2002 के आया था। इससे पहले क्या हुआ था, जो हमारा आर्टिकल था 45 आर्टिकल किसके अंदर आता है, हमारा डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, और डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज मिल नहीं रही है आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, आपके पास वो लिबर्टी नहीं है। बट अगर कोई भी चीज फंडामेंटल राइट पे एग्जिस्ट कॉल करती है, फंडामेंटल राइट्स पे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मनाने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। और स्टार्टिंग जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम क्या कर सकें, हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने बोला था हम क्या करते हैं, इसको फंडामेंटल राइट्स की जगह हम इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में रख देते हैं, ताकि क्या हो कि जब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी हो सके कि हम हर किसी को एजुकेशन दे सकें, इतना पैसा हमारे पास आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हमको प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन। और ये कब उनको लगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में लगा उनको, हम क्या कर सकते हैं, अब हम एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तभी आर्टिकल 45 से उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 45 में पहले क्या लिखा था, 0 से लेकिन 14 ईयर तक की एज तक कोई भी चाइल्ड है उसको हम एजुकेशन से लेकर हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। बट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या कर दिया गया, इस 45 के अंदर क्या रह गया, सिर्फ 0 to 6 ईयर तक चिल्ड्रन, और 6 से लेके 14 ईयर तक किसके अंडर आ गए, आर्टिकल 21A के अंदर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल किस फंडामेंटल राइट आर्टिकल किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21A के अंडर आता है। ये भी आप जरूर याद रखना, वो किसमें होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। अब एक और चीज है, अगर डीपीएसपी को जस्टिशिएबल नहीं होते, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में उसको केस नहीं कर सकते, तो इनको जस्टिशिएबल कैसे बनाया जा सकता है, इनको जस्टिशिएबल बनाया जा सकता है तो स्टैट्यूट बना के, स्टैट्यूट क्या हो गया, एक लॉ बना के। और लॉ कैसे पास होता है, जब कोई भी चीज को पार्लियामेंट में पास किया जाता है फ्रॉम बोथ द हाउसेस, लोकसभा प्लस राज्यसभा, एंड एट द सेम टाइम उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी मिल जाए, तब वो लॉ बन जाता है। तभी आपने सुना होगा 2009 में क्या हुआ था, राइट टू एजुकेशन को पास किया गया था, अब जाके वो जस्टिशिएबल हो गया। अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है तो आप किसी भी जगह जाके कर सकते हो, केस कर सकते हो, अब आपको मिलेगी ही मिलेगी राइट टू एजुकेशन। और आप कहोगे 2002 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई थी, तो फिर 2009 में क्यों राइट टू एजुकेशन का बिल पास किया गया, क्योंकि जब इन्होंने बोला 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, अब प्रोवाइड कराने, फंडामेंटल राइट बनाना, हर किसी को एजुकेशन बनानी है, तो उनको कुछ टाइम पीरियड चाहिए था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें,
उतने टीचर्स भी हो जो क्या करें बच्चों को पढ़ा सकें। इतना उनको टाइम मिला था तब उन्होंने इतना टाइम लेके 2009 तक सारी कंप्लीशन कर दी टाइम की। फिर उन्होंने क्या किया, राइट टू एजुकेशन बिल पास किया। तब जाके हमारे क्या राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बिल्कुल ट्रू सेंस में बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 9, द मोशन इज पास टू डिस्कस द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस बाय सेटिंग असाइड द नॉर्मल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। देखो जब भी एक ऐसा मोशन है जब वो पास कर दे, कोई भी मैटर आ जाए जो अर्जेंट हो, काफी ज्यादा अर्जेंट हो, जिसके लिए हम वेट ना कर सके, तो एक मोशन पास किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्जेंटमेंट मोशन। जब हम अर्जेंटमेंट मोशन पास करते हैं तो क्या होता है कि चाहे कोई भी चीज प्रोसीडिंग चल रही हो हाउस में, सब चीजों को साइड में रख दिया जाता है और जिस चीज के लिए मोशन पास किया गया है सिर्फ उसी के बारे में उस दिन बात चलती है। कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? कॉन्फिडेंस मोशन होता है जब भी आपको सरकार बनानी है तो आपको बताना है कि आपकी मेजोरिटी है आपके पास। जब आपको बताना पड़ता है कि आपके पास मेजोरिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस मोशन। सिंपल सी बात है। प्रिविलेज मोशन किसके होते हैं? एमपीज के, जो कहाँ पे होते हैं? लोकसभा में होते हैं और राज्यसभा में होते हैं। क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन हो गया कि जब भी आप क्या करते हो, बिल कोई भी अगर एमपी है या फिर मिनिस्टर है या प्राइवेट मेंबर है, डज नॉट मैटर, जब भी क्या होता है वो एक बिल पास करते हैं। बिल पास कराने के लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे? या लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। चाहे वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करें चाहे वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जो जिस आदमी ने वो बिल लाया है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, सबको प्रोवाइड करता है, लोकसभा में प्रोवाइड करता है, राज्यसभा में प्रोवाइड करता है। और जब उसको लगता है कि हाँ भाई, थोड़ी देर जो फर्स्ट सीटिंग की जाती है, फर्स्ट सीटिंग में जो रीडिंग की जाती है कि ये बिल है किसके बारे में, अगर जिस बंदे ने पास किया उसको लग रहा है कि एक दिन हमने के बारे में हर किसी को पता चल गया, और वो एक मोशन पास करेगा, क्लोजर मोशन, कि हाँ भाई सबको पता चल गया, अब इसको इसके बारे में ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार क्लोजर मोशन पास हो गया तो वो बिल सबसे ले लिया जाएगा और फिर उसको स्क्रूटनी के लिए भेज दिया जाएगा डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के पास। ठीक है, आपको स्टैंडिंग कमेटीज में जाता है, वो एक प्रोसीजर होता है जो आपको पता होना चाहिए कि बिल पास कैसे होता है। ठीक है, लोकसभा से जा पहले गया, वो स्टैंडिंग कमेटीज में गया, फिर आपको रिसेस पीरियड मिलता है, फिर आपको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी से वापस आके आपके किस में आता है, लोकसभा में पास किया जाता है। फिर आप लोकसभा से जब पास होता है फिर राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा भी सेम करती है, उनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो वहाँ से पास करती है। तो वहाँ से पास हो गया, वो स्क्रूटनाइज करके वो प्रोवाइड करती हैं राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कि बिल में क्या लिखा है। यहाँ पे जो राज्यसभा में मेंबर बैठे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबके सब पढ़े लिखे हैं, काफी अनपढ़ भी हैं, उनको पता ही नहीं है क्या लिखा है। तो वही स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं उनको पूरा एक तरीके से उनका ब्रीफ करके पूरा बता देती हैं कि इसके बीच क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से प्रोविजंस में आपको काउंटर करना है, कौन कौन से प्रोविजंस में आपको बोलना है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो सेम चीज़ करते हैं। अगर दोनों से पास हो गया फिर जाता है वो प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट के एसेंट मिल गया तो ये बिल क्या बन जाता है, एक्ट। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन प्रेसिडेंट वॉन इलेक्शन ऑटोमेटिकली बिकॉज देयर वाज नो वन स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम। कौन से प्रेसिडेंट थे? देखो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये मान सकते हो मैं हार्ड क्वेश्चन है, बट आपको ये पता होना चाहिए क्या कि नीलम संजीवा रेड्डी ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली इनको क्या मिल गई थी, जीत मिल गई। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।